کورونا کی دوسری لہر بے قابو، مزید 58 افراد جاں بحق، اب تک 8,361 اموات، 24 گھنٹے میں 3,308 نئے مریض، مہلک وائرس سے 4,16,499 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 53,126 تک پہنچ گئی۔ کورونا کی شدت میں روز بروز اضافہ، حیدرآباد کے 12 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ، نفاذ 7 دسمبر سے ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کورونا کی صورتحال خراب، پی ڈی ایم کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں ملے گی، کرسیاں اور ساؤنڈ سسٹم لگانے والوں کے خلاف پرچے کٹیں گے، کرسی چھوڑ دوں گا مگر این آر او نہیں دوں گا، وزیر اعظم عمران خان کا پھر اعلان۔ حکمرانوں سے نجات ملنے تک تحریک جاری رہے گی، لاہور جلسہ ہر صورت ہوگا، کسی اجازت کی ضرورت نہیں، جو اینٹ مارے گا اسے پتھر سے جواب دیں گے، شاہد خاقان عباسی کی للکار۔ حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں، تحریک انصاف سے بڑے جلسے نہ کسی نے کیے نہ ہی کر سکتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا چیلنج، کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی وارننگ۔ استعفے دینا آسان نہیں، اپوزیشن نے ایسا کیا تو حکومت دوبارہ الیکشن کرا دے گی، پی ڈی ایم میں شامل 3 جماعتوں پر کرپشن کے سنگین الزامات، تحریک انصاف لوٹ مار ختم کرنے اقتدار میں آئی، شبلی فراز۔ بی آر ٹی پشاور میں 2 ارب 77 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف، ڈیزائن کی تبدیلی اور اضافی تنخواہوں پر بھی کروڑوں کے اخراجات، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جمع۔ لاہور، ساہیوال، خانیوال سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، اہم شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم، ٹریفک کی روانی متاثر۔ پنجاب حکومت کا امپورٹڈ چینی لینے سے انکار، وفاقی حکومت نے 26,000 میٹرک ٹن درآمدی چینی یوٹیلیٹی سٹورز کو دے دی۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں زہر ملک اور میں ہوں مریم ذیشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، کورونا کی دوسری لہر خوفناک ہونے لگی، وبا سے 24 گھنٹے کے دوران مزید 58 افراد دم توڑ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 8,361 ہو گئی، جبکہ 3,308 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ وبا سے متاثر 2,436 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا سے اموات میں اضافہ، متاثرہ افراد کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی، مہلک وائرس مزید 58 افراد کی جان لے گیا، جاں بحق افراد کی تعداد 8,361 ہو گئی، مزید 3,308 افراد میں وائرس کی تصدیق سے مریضوں کی تعداد 4,16,499 ہو گئی، ایکٹیو کیسز کی تعداد 53,126 تک پہنچ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 1,82,473، خیبر پختونخوا 49,220، پنجاب میں 1,22,955، اسلام آباد میں 32,414، بلوچستان 17,440، آزاد کشمیر میں 7,278 کیسز ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 4,719 ہو گئی۔ وبا سے متاثرہ 2,436 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس کی دوسری لہر خطرناک صورت اختیار کر رہی ہے، مریضوں کی تعداد میں اضافے سمیت اموات بھی بڑھ رہی ہیں۔ صوبے میں کورونا کی دوسری لہر سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,000 کے قریب ہو گئی، مزید سمین جان کی رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کی دوسری لہر میں شدت پیدا ہو گئی، صوبے کے مختلف اضلاع میں ایک ہی دن میں 400 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ایک ہی دن میں مختلف اسپتالوں میں کورونا کے 10 مریضوں نے دم توڑا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کورونا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں اسی طرح جاری رہیں تو نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔
कोरोना की केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी जितने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उसमें बेडों की डिफिशेंसी है और मरीज़ ज़्यादा है और बेड की कोई सहूलत नहीं है। इंतज़ामात की बहुत कमी है। कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में जाए आइसोलेशन वार्ड और बेड्स की कमी है, तो इन चीज़ों की कमी है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा फोकस करे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि पेशावर के सरकारी अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो गई है, जबकि निजी अस्पताल भी मरीजों से भर गए हैं। एक तरफ लोग कोविड-19 से मर रहे हैं, आपका जो हेल्थ सिस्टम है इस वक्त इतना प्रेशर है कि आपका जो नॉर्थ वेस्ट जैसा हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसके अंदर कोरोना के मरीजों के लिए बेड्स नहीं है। आपके हयाताबाद में बेड्स नहीं है, आपके शेरपाव अस्पताल में बेड्स पूरे हो चुके हैं, एक LRS रह गया है। खैबर पुख्तनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की मजमूई तादाद 48,683 तक पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस की नए लहर के बायस पेशावर के बड़े अस्पतालों में ऑपरेशंस, OPDs और दीगर बीमारियों का इलाज महदूद कर दिया गया है। कैमरामैन नासिर नईम के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। शहर कायद में गुटके मावे पर पाबंदी के बावजूद गुटका मुनफरिद और खुफिया तरीकों से फरोख्त हो रहा है। कहीं घरों से तो कहीं पान के कैबिन्स में तो कहीं नामालूम अफराद इस कारोबार के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सोलिहा फिरोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गईं और गुटके की फरोख्त के सबूत सामने ले आईं। दोनों भाइयों का इंतकाल हुआ है। इतना बड़ा जख्म था उनका और ये बच्ची अपने हाथों से साफ करती थी। गरीब के बच्चे को मार रही है लोग। चला गया मेरा बेटा, बहुत लाड प्यार से पाला था। अगर पुलिस चाहे, यकीन करोगे, एक गुटका जो ना, एक गुटका वो नहीं बिक सकता। ये तो थे वो मुतासरीन ख़ानदान जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, और जब हमने दीगर शहरियों से बात की और सवाल किया कि गुटका या सेहतमंद ज़िंदगी, तो इंतखाब किया गया कि गुटका। छोटा था, तकरीबन 9 साल 10 साल का था। घर वाले तो चुप चुप के खाता था। तकरीबन 18-19 साल उम्र है। इस उम्र में मेरा यह हाल है। अगर मैं और 5 साल तक खाऊंगा तो मेरे ख्याल से मैं बचूंगा भी नहीं। इधर पुलिस वाला वो बेच रहे, आवाम बेच रहे, दुनिया बेच रहे, तो हम लोग कैसा छोड़े। मेरा जेब में मावा का पूड़ी आप बोले पाबंदी लग गया। कहाँ से पाबंदी लगी? ये क्या है? मुंह जो है ना, मुंह मेरा ज़्यादा खुलता भी नहीं इतना। ये गुटखा खाने से पेट में खाना भी नहीं जाते। मेरे अलावा मेरा वालिदा भी खाता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं सालाना सैकड़ों अफराद मुंह के कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होते हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद नौजवानों की होती है। बंदे को अपने ऊपर एक वो होती है कि भाई दिमाग सुन हो रहा है, ये हो रहा है, खाते रहते हैं तो काम करते रहते हैं। मना करते हैं, घर वाले भी मना करते हैं, बेगम भी सब मना करते हैं। शहर में गुटके और मावे की फरोख्त पुलिस की कारकर्दगी की तर्जुमानी तो कर रही है, लेकिन एक नज़र इस फुटेज पर भी डालती है जिसमें पुलिस एहलकार खुद गुटखा खा रहा है। लेकिन जैसे ही कैमरे पर नजर पड़ी तो जनाब तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ा गए। नौजवान और खवातीन समेत बच्चे भी इस लत में मुब्तला हो चुके हैं। सूरत हाल बद से बदतरीन हो चुकी है। तो जनाब ये कैसी पाबंदी लगी है? छुपते छुपाते ही सही, जहरीली अशिया तो अब भी फरोख्त हो रही है। 12 साल का हूँ मैं, किसी से मांग के खाता, मावा नहीं मिलता, गुटखा खा लेता हूँ। 50 रुपए का मावा है, 30 रुपए का मावा है, गुटखा 100 रुपए का है। मेरे घर में किसी को नहीं पता, मैं छुप के खाता हूँ। मुझे 100 रुपए रोज मिलते हैं, मैं काम करता हूँ दुकान पे। सिर में चक्कर आता है, बेचैन होते हैं हम। हमारा एक बेटा था, वो तो मर गया। उसने कहा बस तोड़ा दियो, बस आदत पड़ गया। तो सुबह उठता है, चाय पीता है नहीं, फिर मावा मुंह में करता है। कि मैं जाती थी कंपनी में, मेरी दोस्त ने मेरे को बोला कि तू भी खा। पहले मावे खाती थी, मैं खा रही हूँ 20 साल से, तो खाती नहीं तो मेरा दिमाग घूम जाता है। नहीं होता है, अपनी बेटी के दामाद से लेके खाती हूँ। 6 मरतबा सर्जरीज हुई और जबड़े से महरूम भी हुए। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो कि कैंसर जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला है, सिर्फ और सिर्फ गुटके और मावे के बायस। आपने गुटखा नहीं रखा, आपकी गुटखा, मावा और दीगर जानलेवा अशिया का इस्तेमाल करके शहरी खुद तो अपनी जान के दुश्मन बन रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जहरीली अशिया के कारोबार को परवान चढ़ाने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी भी सरे फहरिस्त रही। कैमरा टीम के साथ सालेहा फिरोज खान, दुनिया न्यूज़, कराची।
और अब जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल ख़राब, PDM को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी, कुर्सियाँ और साउंड सिस्टम लगाने वालों के खिलाफ पर्चे कटेंगे। मजीद कहा कि अपोजिशन पहले दिन से ब्लैकमेल करने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि वो कुर्सी छोड़ देंगे मगर NRO नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने कर्जों को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया।